Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. Today we will talk about connective tissues. As we have already discussed in our previous lecture that there are four types of tissues and we have already discussed about epithelial tissues. Today we will talk about connective tissues. What are connective tissues? As their name suggested that they perform connecting functions. Means these are the tissues that connect other tissues in our body. In this way they provide support and binds other tissues, so they act as binder. In connective tissues, cells are present in scattered forms. मीन्स कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर सेल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी उनके अंदर कोई इंटरस्पेसेस नहीं है। लेकिन जब हम कनेक्टिव टिश्यूज़ को देखते हैं तो जो इनके अंदर सेल्स हैं उनके दरमियान इंटरस्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और सेल्स बिखरे हुए होते हैं, यानी स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। These cells are present in an extracellular matrix. कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो एक स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई हालत में एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स? Extracellular matrix is basically a gel-like material in which cells of connective tissues are present. Here you see that there is a jelly-like material in which cells of connective tissues are present. So this gel-like material is known as matrix, and as this gel-like material is outside the cell, so we call it as extracellular matrix. Let us clarify our concepts related to connective tissues through an activity. We've all seen what a building looks like. It has walls, windows, balconies, and terrace. And we also know what it's made up of. Yes, it is bricks, rocks, iron rods, etc. So let's try to make our own building. We started to pile up a few bricks. But you know what happened after a while? They all collapsed. Why do you think it happened? Maybe there's some important component which we have seemed to miss. Can you figure out? Oh, we didn't really use any cementing material. This cementing material is very important to build a structure. It binds all the other materials and helps in making the building firm and solid. So now we know that cement acts as a binding, supporting, and packing material. So just like a building, there's cementing material in our body too, in the form of a special tissue which helps to bind the body together. This tissue helps to connect all the organs and parts of the body, and hence this tissue is rightly named as connective tissue. Now we will discuss about some examples of connective tissues. Examples of connective tissues include bones, blood, cartilage, and adipose tissues. Now we will discuss about these examples one by one. Firstly, we will discuss about bones. As you know that there are about 206 bones present in our body. Bones provide support and protection to our body, and in this way they provide a very important connective role in animal's body. Here you can see bone cells in circular form, and hard matrix shows that bone is a hard, rigid type of structures. The next example of connective tissues is here cartilage. Cartilage is actually a bone, but it is not rigid like a bone. कार्टिलेज जो है वो भी एक बोन की टाइप है, लेकिन वो बोन की तरह का सख्त किस्म का स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसा आप देख सकते हैं कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो रबरी टाइप है, यानी थोड़ा फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है, बोन की तरह का एक रिजिड मैट्रिक्स नहीं है। कार्टिलेज बेसिकली हमारे उन बॉडी पार्ट्स पर प्रेजेंट होता है जहाँ पे दो बोन्स आपस में अटैच होती हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्सटर्नल ईयर यानी जो हमारा पिन्ना है
वो कार्टिलेज का बना होता है। हमारा नोज़ एंड ट्रेकिया जो है वो भी कार्टिलेज का बना होता है। अब अगर हम अपने इन बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एक्सटर्नल ईयर को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है वो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर बहुत सेंसिटिव बोन प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट है, विच इंक्लूड रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड cells is to carry oxygen and transport it to different parts of body, whereas white blood cells act as an army of our body and plays a vital role in our immune system. हमारे पास नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप है वो है एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज आर बेसिकली दोज टिश्यूज दैट आर लिपिड रिच। एडिपोज टिश्यूज हम उन टिश्यूज़ को कहते हैं जिनके अंदर लिपिड रिच सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिपिड स्टोर हुए होते हैं। एडिपोज टिश्यूज आर बेसिकली प्रेजेंट इन आर एब्डोमेन, अंडर आर स्किन एंड अराउंड द किडनीज। एडिपोज टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी किडनीज़ के सराउंडिंग में, हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज़ की एक लेयर होती है और इसके अलावा हमारे एब्डोमेन में एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिपिड यानी फैट स्टोर हुए होते हैं, इसलिए जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। The question that we have in this topic are following. The first question is define connective tissues. इसका आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो स्टूडेंट जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है ब्लड की, बोन, कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यूज, ये वाली सारी एग्जांपल आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बोन एंड कार्टिलेज। जो कार्टिलेज और बोन से रिलेटेड हमने पॉइंट डिस्कस किए वो पॉइंट लिखेंगे आप। इसके अलावा यहाँ एग्जांपल दी गई हैं कि जो कार्टिलेज है वो हमारे किन बॉडी पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है, ये वाली एग्जांपल्स आप इंक्लूड करेंगे यहाँ तक। और स्टूडेंट्स इसमें आप लोग कार्टिलेज और बोन की डायग्राम भी बनाएंगे विद प्रॉपर लेबलिंग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लड सेल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़। ब्लड सेल्स के जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए वो पॉइंट्स लिखेंगे, साथ डायग्राम बनाएंगे और जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। और हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चंस उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को आते हैं तो वो किस तरह से आंसर करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या था कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कनेक्टिव टिश्यूज़ की मिसालें दें। तो उसमें आप लोगों ने हड्डी, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यूज़ और खून, इनकी मिसालें देनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हड्डी और कार्टिलेज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड्डी और कार्टिलेज के बारे में जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे वो पॉइंट आप लोग लिखेंगे, साथ डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एडिपोज टिश्यूज़ और खून के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी खून के सेल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो खून के सेल्स के हमने पॉइंट डिस्कस किए वो पॉइंट्स, इसके अलावा जो एडिपोज टिश्यूज़ की डेफिनेशन है वो आपकी बुक में लिखी हुई है, वही वाली डेफिनेशन लिखें यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद एडिपोज टिश्यूज़ के डायग्राम बनाएं।